Welcome back to the new session. In this session, we are going to discuss about the passive structure. सभी जानते हैं एक्टिव सेंटेंस को कैसे पासिव चेंज करना. So before starting the class, remember one thing. Please note, only transitive verbs can be changed into passive. Only transitive verbs can be changed into passive. What is transitive verb? A verb can be classified into two: transitive and intransitive. Intransitive verb कभी passive में change नहीं कर सके. What is transitive verb? Transitive verb is a verb which needs an object to complete its sense. That is transitive verb. मतलब transitive verb में object आना जरूरी है. But intransitive verbs do not need an object to complete its sense. In easy way we can say verb के बाद what और whom क्वेश्चन लगा के देखना. अगर ये आंसर नहीं पाते, the verb is transitive. For example, he writes a letter. देख लीजिए, he writes a letter. He writes verb है. He writes what? तब आपको what का आंसर भी मिल गया, ये लेटर. So letter is the object. ध्यान से सुनना. What or whom? We invited the chairman for the party. Invited is the verb. We invited whom? The chairman. So chairman is the object. So you get two different kinds of objects. One answers what, another answers whom. किसको इन्वाइट किया? चेयरमैन को इन्वाइट किया. सो व्हाट का आंसर जो भी शब्द होगा वही है, वो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. whom का आंसर जो भी शब्द है वो वर्ड है, indirect objects. So objects can be classified into two sections. They are direct and indirect objects. What or whom answer direct objects and whom answer indirect objects. अब देख लीजिए, he sang well. Sang is the verb. Well कौन सा आंसर दे रहे हैं? He sang कैसे, how. बढ़िया, well. तभी तो क्वेश्चन में what और whom नहीं है. Change into how. तब what और whom आएगा तभी बनेगा transitive. Otherwise the verb is intransitive. So it is very necessary to identify whether the verb is transitive or intransitive before answering the question. Intransitive verb कभी भी passive इसमें passive में change नहीं होगा. देखो, we sat under a tree. We sat where? So here under a tree it is not an object. Sat कहाँ? Under a tree. So here sit is an intransitive verb. It is not a transitive verb. They sold the house. They sold the house. Sold is the verb. What? The house. The house is the object. What answers direct objects and whom answers indirect objects. So
एक और इसी तरीके बता रहा हूं, वर्ब का नेक्स्ट वर्ड अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज लाइज जस्ट आफ्टर द वर्ब। वर्ब का नेक्स्ट वर्ड होगा ऑब्जेक्ट। तो वर्ब को ऑब्जेक्ट को ढूंढ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इफ द वर्ब इज ट्रांसिटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब का नेक्स्ट वर्ड ही होगा। He drew a picture. He drew a picture. Drew is the verb. He drew what? The what answer I think that is definitely transitive verb. He drew what? A picture. So here picture is object, direct object है। देख लीजिए, they made a plan. They made what? A plan. So plan is the object. अगर वर्ब के बाद what और whom क्वेश्चन लगा सकते हैं, then only we can say that the verb is transitive. She cried aloud. She cried how? Aloud. So the question word here is how, not what or whom. So here cried is intransitive verb. So सबसे पहले बताया था only transitive verbs can be changed into passive. The man sells vegetables. Look here, the man sells vegetables. Sells is the verb. The man sells what? Vegetables. So vegetables, what का आंसर दे रहे, so it is direct object. The teacher punished Ram. Ram को punish किया. Verb here is punished. Whom? Ram. तो whom वर्ड आ गया, तो राम इज द ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे लाफ्ड merrily, खुशी से हंसा। दे लाफ्ड इज द वर्ब हियर। कैसे? हाउ? merrily is the answer. So here merrily is not a transitive verb, it is merrily is not an object. So laughed is intransitive verb. So सबसे पहले आंसर लिखने से पहले it is necessary to identify whether the verb is intransitive or transitive. Transitive verb is the verb which needs an object to complete the work. The boy destroyed the garden. Destroyed is the verb. The boy destroyed what? The garden. So here garden is the object. The mother beat the child. Here mother beat whom? किसको? The child. So child is object, indirect object. What answers a direct object and whom answers indirect object. समझ में आ गया? So before writing the answer, पहला step verb को identify करना whether it is transitive or intransitive. Next thing, I have already told you, सबसे पहले sentence के अंदर से object को identify करना. Second step, ये देखना ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है। थर्ड स्टेप, सेंटेंस के अंदर से हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को निकालना। नंबर 4, अरेंज ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल ऑक्सिलरी लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर ऑक्सिलरी लिखना पड़ेगा।
तो सबसे पहले सेंटेंस के अंदर से ऑब्जेक्ट को निकालना। एक ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद व्हाट और हुम क्वेश्चन लगा कर देखना। सेकंड स्टेप ये देखना ऑब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। नंबर 3 सेंटेंस के अंदर से ऑक्सिलरी वर्ब को निकालना, हेल्पिंग वर्ब को। 4 ये हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट के अनुसार अरेंज करना। ये देख लीजिए, द बॉय is selling fruits। हमारे ये रूट के आंसर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देख लो। द बॉय इज सेलिंग इज द वर्ब, सेलिंग व्हाट? फ्रूट्स। तब आपको ऑब्जेक्ट तो आ गया। सेकंड ये देखना, ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है? फ्रूट्स आपको पता है प्लूरल है। नेक्स्ट वन, सेंटेंस के अंदर से हेल्पिंग वर्ब को निकालना। इधर हेल्पिंग वर्ब इज है, ऑक्सिलरी वर्ब। लास्ट वन, अरेंज एक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट फ्रूट्स है, बहुवचन है, एक्सिलरी इज है, फ्रूट्स इज थोड़ी बोलेगा, फ्रूट्स आर। तब हमारा रूट के आंसर सारे चीज तो आ गया। नाउ वी शैल डिस्कस हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पासिव। So in the lower classes you learn about the helping verbs, auxiliary verbs, auxiliary verbs. Please have a look. Auxiliary verbs. Auxiliary verbs दो टाइप का होते हैं। They are primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. Don't forget, primary auxiliary verbs 11 है, modal auxiliary verbs 13 है। ये primary auxiliary verbs 3 टाइप का होगा। They are do, be and have। ये do कैटेगरी में आएगा do, did और does। be कैटेगरी में आएगा is, am, are, was, were। have के कैटेगरी में आएगा has, have and had। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी में आएगा will, would, shall, should, can, could, may, might, must, need, dare, ought to, used to. 13 models. What are the primary auxiliary verbs? Do में आएगा do, did, does। be में आएगा is, am, are, was, were। have में आएगा has, have, had। models में आएगा will, would, shall, should, can, could, may, might, must, need, dare, ought to, used to। अब ये देख लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसका मतलब क्या है? हेल्पिंग अनदर वर्ब, वर्ब को सपोर्ट करने वाला वर्ड से। ही इज ए beggar। इसमें इज देख लीजिए, इज, ये इज, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर इसके बाद दूसरे एक वर्ब आ जाते then only it becomes an auxiliary verb। he is singing। ये देख लीजिए singing, singing वर्ब आ गया इसके बाद, तब is sing को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आएगा is auxiliary verb। अदरवाइज is खुद एक वर्ब है, it is not an auxiliary verb। she has gone out। इधर has देख लीजिए, has ऑक्सिलरी वर्ब है या नहीं? जरूर है, क्योंकि has के बाद दूसरा वर्ब आ गया gone। अब देखो she has a beautiful garden। ये has देख लीजिए, has के बाद दूसरा वर्ब आ गया क्या? नो। तो ये
एक वर्ब है, तो एक्सिलरी वर्ब तब होगा अगर उसके बाद एक वर्ब आएगा। तो दे आर नेबर्स, दे आर नेबर्स। हियर आर इज इट्स एन ऑक्सिलरी वर्ब? जरूर नहीं है, क्योंकि आर के बाद कोई वर्ब क्रिया नहीं है। सो आर इटसेल्फ इज ए वर्ब। दे आर प्लेइंग, हियर आर के बाद एक वर्ब आ गया, प्लेइंग आ गया, सो आर इज ए हेल्पिंग वर्ब। कैन यू गेट व्हाट आई से? तो इज, देखो, आई एम ए डॉक्टर, हियर एम, ये एम एक हेल्पिंग वर्ब है क्या? नो, इट्स ए वर्ब, क्योंकि एम के बाद दूसरा एक वर्ब नहीं आया। आई एम रीडिंग द बुलेटिन, हियर एम के बाद दूसरा वर्ब आ गया, सो एम इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। तो कितना ऑक्सिलरी वर्ब है? 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स। Do, did, does, is, are, was, were, has, have, had, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, need, dare, ought to, and used to. So among the 24 auxiliary verbs, how many auxiliary verbs are singular? Singular, the word starts with yes. How many auxiliary verbs end with yes? ये 24 ऑक्सिलरी में कितना ऑक्सिलरी यस में एंड होते गए देख लीजिए। 10 आ गया, इस आ गया, वास आ गया, हैस आ गया। दे आर सिंगुलर। इस, वास, हैस, डस। इसका प्लूरल है आर, वास का प्लूरल है वर, हैस का प्लूरल है हैव, डस का प्लूरल है डू। अगेन अब हम ये ऑक्सिलरी वर्ब को हम अलग अलग ग्रुप में डालेंगे। फर्स्ट डू, डिड, डस। नेक्स्ट वन इज, आर, वास, वर। नेक्स्ट वन हैज, हैव, हैड। Another group will, would, shall, should, can, could, ये वाला मॉडल वाला ग्रुप। और एक और ग्रुप में बता रहा हूं, वो ये टू ग्रुप। टू ग्रुप में आते हैं बी प्लस टू। बी प्लस टू में आएगा इज टू, एम टू, आर टू, वास टू, वर टू। देन हैज प्लस हैव प्लस टू। हैव में आएगा हैव टू, हैज टू, हैड टू। देन आएगा गोइंग टू, अबाउट टू। ये टू ग्रुप। अब इज, सम, आर, वास, वर एक ग्रुप में, हैज, हैव, हैड एक ग्रुप में, और ये सब एक ग्रुप में। मॉडल्स प्लस टू ग्रुप। मॉडल्स में आएगा विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, देयर, ought to, used to। तो एक और बी प्लस टू, बी इज टू में आएगा इज टू, आर टू, वास टू, वर टू। हैव टू में आएगा हैज टू, हैव टू, हैड टू, और उसके साथ गोइंग टू, अबाउट टू। अब इज, आर, वास, वर के साथ हम एक वर्ड जोड़ेगा, वही ए बीइंग। ध्यान से सुनिएगा। हैज, हैव, हैड के साथ हम जोड़ेगा बीइंग, और ये ग्रुप के साथ विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to, used to, इज टू, आर टू, वास, ये सबके साथ हम जोड़ेगा बी। और ध्यान से सुनिए, अगर डू और डस है तो इसके साथ हम कुछ नहीं जोड़ेगा, इसको चेंज करके इसी जगह पे इस और आर यूज करेगा। डिड है तो चेंज डिड उसी जगह पे वास और वर यूज करेगा। एक और बार, इज, आर, वास, वर के साथ जोड़ना बीइंग। हैज, हैव, हैड के साथ वी शैल ऐड बीइंग। मॉडल्स एंड टू ग्रुप के साथ हम
बी जोड़ेंगे और डू डस है तो we shall not add anything but replace them with is or are. Did will be replaced by was or were. Now another important point. Sentence के अंदर do did does है तो आंसर में be being been नहीं आएगा. अगर सेंटेंस के अंदर do did does है तो आंसर में be being been नहीं आएगा. तो ये आर बास वर्ग के साथ जोड़ेगा बीइंग, खास खाव खाड़ के साथ जोड़ेगा बीन, मॉडल्स एंड टू ग्रुप के साथ जोड़ेगा बी, डू डस के साथ नहीं जोड़ेगा बट दे विल बी रिप्लेस्ड बाय इज और आर, डिड विल बी रिप्लेस्ड बाय वाज और वर. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्वेश्चन के अंदर डू डिड डस के तो आंसर में बी बीइंग बीन नहीं आएगा. The man was examining the papers. तो सबसे पहले मैं बताया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. The man was verb examining. Examining what? तब आपको ऑब्जेक्ट मिल गया the paper. पहले बोला था वर्ब का ऑब्जेक्ट always lies just after the verb. The man was examining what? The purpose. ऑब्जेक्ट आ गया. Second thing, identification of object as singular or plural. The purpose ये plural है, no doubt. Third one, identification of auxiliary verb. Auxiliary verb sir was है. Then ये ऑब्जेक्ट को इसके साथ मिलाना पड़ेगा. तो पर्पस प्लूरल है, वाज सिंगुलर है, तो हमें इसको प्लूरल में बदलना पड़ेगा वर्ब. बिफोर राइटिंग द आंसर ये चार इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट को निकालना, देखना ऑब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. फिर अगर ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल होगा. अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर रहेगा. He makes paper birds. Look at the sentence. He makes paper birds. He makes what? Paper birds. So you got the objects. Paper birds. No doubt it is plural. What is the auxiliary verb? There is no auxiliary verb present. अगर सेंटेंस के अंदर present auxiliary नहीं है तो you have to split it from the verb. वर्ब के अंदर से स्प्लिट करके निकालना पड़ेगा. मीन्स अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसके अंदर की ऑक्सिलरी डू, डू प्लस फर्स्ट वर्ब इज इक्वल टू फर्स्ट वर्ब. अगर सेकंड वर्ब है तो उसके अंदर से मिलेगा डिड, डिड प्लस फर्स्ट वर्ब इज इक्वल टू सेकंड वर्ब. अगर वर्ब के एंड में यस है तो उसके अंदर छुपा हुआ ऑक्सिलरी डस, डस प्लस फर्स्ट वर्ब इज इक्वल टू यस वर्ब. डोंट फॉरगेट, डू के साथ फर्स्ट वर्ब है फर्स्ट वर्ब, डिड प्लस फर्स्ट वर्ब इज इक्वल टू सेकंड वर्ब, डस प्लस फर्स्ट वर्ब इज इक्वल टू यस वर्ब. हियर मेक्स इज द वर्ब. इधर ऑक्सिलरी वर्ब पसंद नहीं है, मेक्स यस में एंड होते गए, सो इसके अंदर से छुपा हुआ ऑक्सिलरी डस. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर डू और डस है तो दे विल बी रिप्लेस्ड बाय इज और आर. इधर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो अब आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिल गया आर. तो ये चार बात, if you can identify these four things, the answers are very easy. There are different kinds of steps. हम सभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. देख लीजिए, सबसे पहले आंसर लिखने से पहले you have to identify the first word. देखो सब्जेक्ट से शुरू होगा कुछ सेंटेंसेस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, कुछ सेंटेंसेस व्हाट से शुरू होगा, कुछ सेंटेंसेस हु से शुरू होगा. सम सेंटेंसेस स्टार्ट विद when, where, why, how,
Some sentences starts with which, then verb or, don't and let. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइप का कैटेगरी के बारे में बताया. सो बिफोर राइटिंग द आंसर, सबसे पहले फर्स्ट वर्ड को देखना. हाउ द सेंटेंस स्टार्ट्स. देखो सब्जेक्ट से होगा. फॉर एग्जांपल, राम इज राइटिंग ए स्टोरी. ये देखो सब्जेक्ट से शुरू हो रहे. सेकंड वन स्टार्टिंग विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब. हैव यू फिनिश्ड द वर्क. थर्ड वन व्हाट से शुरू होते हैं. व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट हु से शुरू होते हैं. Who made the noise. Next one, when, where, why, how. इनमें से कोई सा वर्ड. When did you make this house? Or where did you put the bag? Why did you steal the money? Etc. 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 Then which से शुरू होते गए. Which paper did you see? Then verb या don't say. Open the window or don't open the window. Last one, let. Let him plow the field. देखो हाउ टू मेक पासिव वॉइस, सो वो हम बाद में पढ़ेंगे. अभी तो आप इसके जनरल कुछ बात में बताया, उसमें ध्यान रख लीजिए. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज सिंगुलर और प्लूरल. नंबर 3 आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. नंबर 4 अरेंज ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. इस आम और वास वर्ग के साथ बीइंग जोड़ना. हैज हैव हैड के साथ बी. मॉडल्स एंड टू ग्रुप के साथ बी. और डू डस है तो जोड़ेगा नहीं, उसको हटाना, उसी जगह पे इस और आर. डिड है तो उसी जगह पे वास और वर. अगर सेंटेंस के अंदर डू डिड डस है तो आंसर में बी बीइंग बी नहीं आएगा. नाउ लुक, ये क्वेश्चन का पहला वर्ड को आइडेंटिफाई करना. हम स्टेप बाय स्टेप इसका प्रैक्टिस करेंगे. नंबर 1 सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस. नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस. नंबर 3 व्हाट से शुरू होने वाला सेंटेंसेस. नंबर 4 हु से शुरू होने वाला सेंटेंसेस. नंबर 5 व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ से शुरू होने वाला सेंटेंसेस. 6 वन व्हिच से शुरू होने वाला सेंटेंसेस. 7 वर्ब या डोंट से शुरू होने वाला. लास्ट वन लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस. सो हम कल एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.